Hi everyone, welcome to our channel Humanities and Commerce Excellence. Today we are going to talk about the most important GK topics which we are going to cover for CLAT 2025. So the first topic which we are going to cover today is the United Nations Office on Drugs and Crime. This was established in 1997. It was a merger between the two companies, not two companies exactly, the two organizations, United Nations Drug Program and Center for International Crime Prevention. This agency is headquartered in Vienna. Vienna is in Australia. So this is going to be one of the most important questions. The first thing which I would like to tell you is that United Nations Drug Control Program was basically established in 1991. This was the basic thing. And after that, the Center for Economic Crime Prevention was created in 1997. They merged. These entities merged in 2002 to form UNODC, yani United Nations Office on Drugs and Crime. So, mandates and objectives, they are basically the organization who tells us about the illicit drugs, crime, terrorism. What are the problems people are facing all over the world just because of drugs? They are also assisting the states in the ratification of international treaties, the what all drugs needs to be prevented, why people are committing suicide. They tell each and everything. How to control these drugs, how to control these crime prevention programs. Okay. There are many areas which they cover. First is organized crime and trafficking. They just tell us about कि कोई भी drug trafficking, human trafficking, smuggling नहीं होनी चाहिए. They also tells us about the implementation against the corruption and promoting transparency during the drugs program. Criminal justice is very important. Drug abuse, prevention, health. ठीक है. So promoting evidence based drug abuse. ठीक है. तो ये कोई भी आपकी ड्रग्स की वजह से ड्रग्स अब्यूज की प्रॉब्लम्स है, वो भी ये सब देखते हैं. टेररिज्म को प्रिवेंट करना, क्योंकि टेररिज्म में सबसे ज्यादा ड्रग्स ही इन्वॉल्व होते हैं, हवाला जिसको हम बोलते हैं. वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट ये लोग प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. एंड दे आल्सो हैव गॉट रीजनल ऑफिसेस. वन इज इन थाईलैंड, वन इज इन सेनेगल, इजिप्ट, कैरो, कीनिया, नायरोबी एंड पनामा सिटी. And they are also working with different organizations. One of them is World Health Organization and United Nations and the International Labour Organization, so that they can work with the ILO, they can work with the WHO to address the private problems, to address the things which are going to be committed related to drugs. Next, we are going to also talk about how they are partnering with Interpol. Interpol, it's a police organization which is located in France. तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज national emergency under Article 352. National emergency Article 352. It is a situation where the security of India is threatened by war, external aggression or armed rebellion. भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. एंड दिस प्रोविजन ग्रांट्स द प्रेसिडेंट द अथॉरिटी टू डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी. कोई भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है. प्रेसिडेंट से बिना पूछे आप नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं. एंड दिस इज द बेसिकली द थिंग. यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, रिपोर्ट्स फ्रॉम द गवर्नर, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. नेशनल इमरजेंसी पूरी कंट्री में भी लग सकता है या कुछ स्पेसिफिक एरियाज में भी लग सकता है. और एक बार जब नेशनल इमरजेंसी लग गई तो आपकी गवर्नमेंट के फंक्शनिंग और आपके राइट्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकते हैं. यहाँ पर सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं होते, बट हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है जिनका पूरा का पूरा काम हम लोग खत्म कर सकते हैं. ये कहीं ना कहीं हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. व्हाट आर द इफेक्ट्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जिसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे. फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 358 ये कहते हैं कि सिक्स फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट्स, दे आर सस्पेंडेड. Article 358 was amended by the 44th Amendment Act. Additionally, Article 359 empowers the President to suspend the right to move to any court. यहां पर सेंटर और स्टेट के रिलेशंस ये तो भाई बहुत ही तगड़े तरीके से हमारे पास चलते हैं. ठीक है.
नेशनल इमरजेंसी में जो हमारे थ्री पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी में से, एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी ज्यादातर आ जाती है। लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट इज empowered टू legislate ऑन द सब्जेक्ट मैटर इन द स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट को भी पूरा लेजिस्लेचर अपने अंदर ले लेता है। फाइनेंशियल की अगर बात करें तो जो रेवेन्यू है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, इसके भी हम रेवेन्यू को चेंज चाहे कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। इंडिया में पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1962 में, सिर्फ 1975 में नहीं। पहली इमरजेंसी लगी थी 1962 में जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था। ठीक है, इट वेंट टिल 1968। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड प्रोक्लेमेशन वाज अकर्ड इन 1971, ये पाकिस्तान के अटैक के बाद हुआ था। ये एक बहुत बड़ा हमारा कारण था। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है। थर्ड प्रोक्लेमेशन वाज मेड इन जून 1975 एंड दिस वेंट टिल 18 मंथ्स की हुई थी। इट वाज डन बाय इंदिरा गांधी। हम सिर्फ इसी इमरजेंसी को रिमेंबर करते हैं, बट नहीं, इमरजेंसी हम लोगों के पास 3 बार लग चुकी है। जब भी आपको इंडिया में लगे कि सिक्योरिटी प्रॉब्लमैटिक है, तो भैया ये एक कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहां तक आपका पहले 2 नोट्स हो गए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।